Now chapter 9, sorry 9th standard, chapter first, exercise 1.2, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हम लोग ने 4 क्वेश्चंस 1.2 का अपलोड किया है. करेक्ट. नाउ वी विल अपलोड वर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, देन और 1.2 एक्सरसाइज वी गोइंग टू गेट ओवर. सी अभी देख ये गिवन लाइन, एक लाइन दिया हम लोगों ने और एक लाइन के ऊपर देयर आर सम पॉइंट्स है T, S, R, P, Q. On basis of this diagram का all the points are collinear points. On basis of these lines कुछ questions here है और उसका answers we have to write. So see, I have already written the answers over here to explain what this clearly. Correct? Now see, first one, write the names of opposite rays. Ray RP. First of all, what do you mean by the opposite rays? समझो ये एक लाइन है, करेक्ट. इधर O, इधर A है, इधर B है, करेक्ट. व्हाट डू मीन बाय द रे? रे मतलब ये इसका O एंड पॉइंट है और O, तो OA इज एक रे हो गया. OA इज व्हाट वन रे. अब इसका एंड पॉइंट क्या है? O है, तो O एक रे हो गया. ऑपोजिट मतलब क्या? ये एंड पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया रे? OA. और ये क्या हो गया? OB. तो OA and OB are called what? Your opposite rays. समझे इसे? Now see, now OA and OB are called what? The both the rays must be in the same line और दोनों का कॉमन क्या होना चाहिए? एंड पॉइंट होना चाहिए. अब यहाँ पर when you hide this one, तो OA goes on the right hand side. When you hide A, OB goes on the left hand side. These two rays are called what? Your opposite rays. अब हम लोग स्टडी करेंगे. सी ना इधर दिया आरपी ना, आरपी एक रे है, आरपी वन रे. तो आरपी अगर रे है तो आर इसका कॉमन पॉइंट है, आर के इसका आर इज कॉल्ड व्हाट? द एंड पॉइंट है. आर इज कॉल्ड द एंड पॉइंट. सो इट कैन बी दो रे होगा. नंबर वन, एक तो आर एस, आरपी ये राइट हैंड साइड, आर एस एंड आर टी are what? The two opposite rays. Correct? See, RP ये एक रे है, goes on the right hand side, तो उसका opposite क्या होगा? RS ये opposite है और RT ये क्या है? Opposite rays है. Both the rays are moving what? On the opposite side. Exactly, they are moving towards what? Towards the left hand side and towards the right hand side. So RP goes on the right hand side, RS and RT goes on the left hand side. That's why RS or RT is called what? Your opposite rays. Correct? So this was the first one. We have done this one. Second one, write the intersection set of ray PQ and ray RP. Now first of all, what do you mean by the intersection? Intersection मतलब होता है common. याद रखो. See, intersection means क्या आएगा? ये कॉमन. करेक्ट. सी, इट कैन बी कॉमन रे ऑल्सो, इट कैन बी व्हाट? कॉमन रे. अब दोनों में कॉमन रे क्या है? फर्स्ट वन क्या बोला हम लोग को? रे पी क्यू. ये रे है, रे क्या है? ये रे पी क्यू है. करेक्ट. ये रे पी क्यू दिया और हमको दिया व्हाट? रे आर पी. रे क्या दिया? आर पी दिया. करेक्ट. रे आर पी, रे आरपी. सी, अब रे आरपी है और रे पी क्यू है. सो इफ यू टेक दिस वन, रे आर क्यू हो गया है ना, और रे क्या हो गया? और रे हो गया पी क्यू, रे हो गया. करेक्ट. दैट्स मीन, तो रे आरपी के अंदर क्या आता है? रे पी क्यू आता है. रे आरपी के अंदर व्हाट कम्स इन? रे पी क्यू. तो आंसर क्या आपका? तो इन जो कॉमन पर रे पी क्यू, the intersection set of PQ and RP. मतलब PQ ये PQ है और RP goes on. Correct? When RP goes on, the ray is what? Ray goes on. ray जाती रहती है. Ray will not going to stop. उसको जब एरो इधर आ गया, it goes on. तो सबसे बिगेस्ट रे तुम्हारा क्या है? RQ. और सबसे स्मॉलेस्ट रे तुम्हारा क्या है? वो RP या PQ ले लो. PQ. RP is the biggest ray and PQ the smallest ray. So PQ comes what? In the biggest ray. So PQ is called what? The intersection.
रे पी क्यू द इंटरसेक्शन, यहाँ से यहाँ पर द intersection set of what ray PQ and what RP. So R ray PQ is the what common ray for both the rays. Correct. Third one. Then we will study about the योग का intersection. हमने study the opposite study किया. फिर हमने study किया था what the इसका intersection study किया. अब हम लोग study करेंगे union. What do you mean the union? Union का मतलब होता है joining. Two rays or two sets. When we join the two rays, जब दो रे को ज्वाइन करोगे तो मिलेगा आपको लाइन. When two sec को ज्वाइन करोगे तो will get what 1 second. सीधे क्या बोला है? Write the union set of the ray PQ. अब ये रे PQ है, ये रे PQ है, ये PQ है, और रे क्या है? QR. QR comes over here. QR ये रे हो गया. So PQ is one ray and QR is one ray. See, तो दोनों साइड एरो है and both the side एरो होगा तो we get one line. So a line is called what? या तो you can tell what line PQ or you can tell what the line PR. कोई भी लाइन मिलना, line PQ और line what PR are the two lines, है ना, are the union of what PQ and QR. Union का मतलब joining this one. Join करो इसको. PQ ड्रॉ कर दिया हम लोग ने, फिर QR को join करो, तो दोनों साइड में एरो है, जब दो साइड एरो होगा it becomes a line. तो you can write one answer also. You can write line PQ or you can write what line PR. PQ or PR are the what two union of the what of the two rays PQ and what QR. सी रे के लिए एक ही लाइन होगा, एक ही एरो होगा रे के लिए, लाइन के लिए दो एरो रहेगा. अगर ये एक ही एरो है तो ये रे हो गया, टू एरोज है तो ये लाइन हो गया. तो टू एरोज हो गया, ज्वाइन किया हम लोगों ने इसको. यूनिट का मतलब ज्वाइनिंग किया हमने टू रेज, दैट मीन द टू रेज आर जॉइंड, तो वी गॉट वन लाइन. तो ये लाइन मिल गया, तो लाइन PQ और यू कैन राइट व्हाट लाइन PR. करेक्ट. नेक्स्ट see next topic क्या है हमारा? see state the ray of which say QR is a subset. अभी subset मतलब क्या? समझो एग्जाम्पल एक रे है, PQ एक रे है. अब इसके अंदर एक और एक रे है, क्या है? RQ एक रे है. बट ये जो छोटा रे इसके अंदर फिट हो जाता है, ये RQ आ गया. तो RQ इज अ स्मॉल, RQ फिट हो गया किसके अंदर? PQ के अंदर, PQ रे के अंदर. RQ स्मॉल रे है, PQ बिग रे, तो RQ ये पार्ट है किसका? PQ का. RQ ये पार्ट है किसका? PQ का. सो RQ इज कॉल्ड व्हाट द सबसेट. बोल इसको सबसेट मतलब क्या? वो उसका पार्ट है. इसको व्हाट है? एग्जांपल फैमिली है, अब फैमिली पूरा एक सेट है, इसको फैमिली इज कॉल्ड व्हाट द सेट. अब फैमिली के अंदर अगर सपोज यू आर देयर, यू अलोन आर देयर, तो यू आर द सबसेट ऑफ योर फैमिली. योर ब्रदर अगर होगा तो योर ब्रदर इज कॉल्ड व्हाट सबसेट ऑफ योर फैमिली. तो कोई बहन होगी, सिस्टर होगी, तो सिस्टर इज कॉल्ड व्हाट योर सबसेट ऑफ द फैमिली. फादर होगा, फादर सबसेट ऑफ द फैमिली, और मदर होगा, मदर सबसेट ऑफ फैमिली. दैट मीन्स एक एक इंडिविजुअल बिकम्स द सबसेट ऑफ द होल फैमिली. तो होल फैमिली इज कॉल्ड व्हाट द बिगेस्ट सेट. उसमें से एक एक पार्ट चुने हुए, दैट्स कॉल्ड व्हाट योर सबसेट. उसी तरह से अगर PQ एक रे है, अगर PQ एक रे है, उसमें अगर RQ आ जाता है तो RQ क्या गया? RQ belongs to PQ. RQ belongs to what? PQ. When RQ belongs to PQ, that means RQ is called what? Your subset. अब हम लोग स्टडी करने का है, समझा? तो state the ray of which segment QR is the subset. See, अब QR क्या है? ये सबसेट है. अगर ऐसा इन्होंने बोला है, see QR see QR एक सबसेट है, करेक्ट? see ये सेगमेंट है, see QR ये क्या है? ये एक सेगमेंट है. अब स्टेट द रे विच सेट QR सबसेट. QR सबसेट है तो क्या आएगा? वही आंसर आएगा. समझो अगर ये रे हो गया हमारा, ये रे डाल दो, और याद है निका रे सबसे स्मॉल क्या होता है? सेगमेंट. सेगमेंट स्मॉल हो गया, उसके बाद में रे क्या हो गया? बिगर देन सेगमेंट, बिग देन सेगमेंट,
लाइन क्या हो गया, बिगर देन रे, ये रे है और लाइन है, तो सबसे छोटा सेगमेंट, उससे बड़ा रे, उससे बड़ा लाइन, दैट मीन्स व्हाट, ये आर क्यू का ये सेगमेंट है, आर क्यू का ये सेगमेंट है। व्हेन यू पुट वन लाइन दैट मीन्स आर क्यू या क्यू आर इज द सबसेट ऑफ दिस रे, कौन सा रे वो, क्यू आर, करेक्ट। सी देयर पर हम लोग को सेगमेंट क्यू आर इज द सबसेट ऑफ रे, बहुत सारे रेज है, सीधे ले लो, क्यू आर एक ले लिया मैंने, फिर एस क्यू एक ले लिया मैंने, टी क्यू एक, टी क्यू, सी टी आर क्यू एस, टी क्यू, कोई भी आर क्यू एस क्यू टी क्यू क्यू आर, from this we can write what, any 2 या 3, so that means this RQ belongs to ray RQ, this segment RQ belongs to what's ray SQ, this segment RQ belongs to what, ray TQ, this segment RQ belongs to what, ray QR. But this means what, the segment is a part of what, ray RQ, ray SQ, ray TQ and ray QR. That's why this segment QR is a subset of what, all these rays, subset of what, ray QR, ray SQ, TQ and what, QR. Now next one, see, next हम study करेंगे, then next topic, see, write the opposite ray with a common end point. See, अब तो now we have to write what, opposite rays, क्या common end point है, R. See, if you draw this one, ये R P, ये कॉमन एंड पॉइंट है, इधर भी आएगा, करेक्ट, नथिंग। अगर ये कॉमन एंड पॉइंट है, सो अगर इन लोगों को बोला कॉमन एंड पॉइंट, याद रखिए, लिसन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन एंड पॉइंट, यानी आर सबसे एंड पॉइंट है किसका, रे का, तो सी, तो कौन सा रहेगा, रे आर पी इज ऑपोजिट टू रे एस आर, रे आर पी इज ऑपोजिट टू रे एस आर, ray RQ is opposite to ray what, TQ, RQ. So RP opposite to ray RS, RQ is opposite to what, ray TRT. These are what the common endpoint RP and R. When you can write any one also. क्या दिया मैंने इनको, RP is common to what, R, एक ही दिया है, you can write two also, RQ and RT also, right? So R is the what, common end point, we will get what, two rays RP and RS. So listen again, write the two rays with a common end point. See, इधर common end point क्या था, R से हमने दो रे लिखा, तो इधर क्या किया हम लोग को, S दिया common end point, S दिया है, तो इस साइड भी आ जाओ, एंड इसका opposite रे क्या आएगा, इधर opposite रहेगा SR, ST are the two opposite rays, क्योंकि S उसका लास्ट एंड पॉइंट है, अगर S एंड पॉइंट है तो S से रे स्टार्ट होता है, क्या, रे SR एंड रे यहाँ पर आएगा तो रे ST, तो रे SR एंड ST आर द टू रेज कॉमन एंड पॉइंट विद व्हाट, S, करेक्ट, नसी। नाउ उसके बाद में देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे SP एंड रे ST, याद है नहीं का, इंटरसेक्शन का मतलब होता है व्हाट, कॉमन। अब रे SP में, ST में कॉमन क्या है, S और S कॉमन है, यानी एक ही पॉइंट कॉमन है, जैसे कि अगर इफ आई टेल व्हाट, एक रे क्या है, ये रे SP है सपोज, और उसके बाद में इफ वी टेक व्हाट, रे ST, ये एक रे है और ये एक रे, कॉमन पॉइंट क्या इसका, S, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों रे में कॉमन क्या है, S is the common point. So क्या आएगा, point S is the common point, is the intersection of the ray SP and what, ray ST. This for the whatever question number 5. Correct. Now question number 6 का third question, sub question 3. First and second question we'll do this afterwards, after this one, because this sums are very easy. First we'll solve this one. See, अभी हम लोग ने फाइंड किया था, लेंथ पहले फाइंड किया था, सेगमेंट फाइंड किया था, whether two segments are congruent not, फाइंड किया था, सेम सम, नो चेंजेस। फर्स्ट वन फाइंड करेंगे डिस्टेंस, करेक्ट, फर्स्ट वन, तो डिस्टेंस के फाइंड करने का है, यूवी वी डोंट नो, करेक्ट, सो पहला निकालो। सी अब यहाँ पर
0 है, 2, 4 and nothing given, correct? See, so first one पहले इधर हमको फिल करने का, फर्स्ट फिल ऑल दिस वन, इधर सी इधर 0 0 के बाद क्या है, इधर मार्किंग क्या है 1, 2 इधर मार्किंग क्या है 3, इधर 4 है, इधर 5, राइट, 6 इधर आएगा, इधर मार्किंग इधर नहीं, इधर मार्किंग है, so इधर 0 -1 -2 है, इधर -3, इधर 0 मार्किंग क्या है 1, p की वैल्यू -2, l ने दिया है -3, q -4 है और -u कितना है 5 है। ये फिल करने के बाद देन स्टार्ट द सम। अब क्या है u का फाइंड करो कोऑर्डिनेट, तो u का कोऑर्डिनेट क्या है -5, b फाइंड करो, तो b का कोऑर्डिनेट b कितना है 5, ये माइनस में या प्लस में, मैंने पहले बताया था द नंबर जो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नंबर पॉजिटिव होगा दैट विल बी व्हाट ग्रेटर, सो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन व्हाट -5, तो फाइंड करो डिस्टेंस ub पर ग्रेटर नंबर फॉर्मूला साइन, उसके बाद में फिर -5 इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस ये 5, देयरफॉर डिस्टेंस ub is equal to what 10, ये तो फर्स्ट मिला, करेक्ट। नाउ देन हम स्टडी करेंगे व्हाट डिफाइन करेंगे डिस्टेंस pc फाइंड करेंगे हम लोग, करेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क है, पहला फाइंड द कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट क्या है -2, c का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, अब फाइंड करो इसमें c माइनस प्लस है, so always plus number will be greater than what -2, right? Find the distance pc, find करो, pc is equal to पहले greater number minus sign, उसके बाद ये नंबर सेकंड नंबर 4 minus minus plus 2, therefore distance pc is equal to what 6, correct? So we got हम लोग distance pc 6, then find the distance pb, डिस्टेंस v कैसा आएगा क्वेश्चन मार्क, v का कोऑर्डिनेट v किधर है, इधर है, v का कोऑर्डिनेट क्या है 5, b का जो कोऑर्डिनेट है v इधर 2, दोनों पॉजिटिव में है, तो 5 ग्रेटर देन व्हाट 2, डिस्टेंस क्या रहेगा vb, तो डिस्टेंस vb क्या रहेगा ग्रेटर नंबर फॉर्मूला साइन माइनस, देयरफॉर डिस्टेंस vb इज इक्वल टू व्हाट 3, ये मिला हमको डिस्टेंस vb। नेक्स्ट वन व्हाट डिस्टेंस ul, डिस्टेंस व्हाट ul वी डोंट नो, करेक्ट, तो u का डिस्टेंस u का कोऑर्डिनेट क्या है -5, करेक्ट, ये प्रॉब्लम में दिया है, फिर भी फर्स्ट टू फिल दिस लाइन, करेक्ट, फिर l का कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया, हमने फिल किया l का -3, तो -5 -3 है, अब दोनों नेगेटिव है, द नंबर विच इज स्मॉलर विल बी ग्रेटर व्हेन द टू नंबर्स आर इन नेगेटिव, तो यहाँ पर -3 ग्रेटर है किससे -5 से, तो क्या फाइंड करने का डिस्टेंस ul फाइंड करो, तो क्या आएगा -3 फॉर्मूला साइन -5, सो -3 माइनस माइनस प्लस ये आएगा 5, सो डिस्टेंस ul is equal to minus plus minus, आंसर कितना आंसर आएगा 2, always put what greater number sign। See now question number 6 the first and second part we have not done, now we are doing this the first and second part, first we have done what question number 3, now we are going to do what question number 1 and question number 2, very simple sum, state the point which are equidistant from b, ना ये point b है, सो पॉइंट बी से कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, आंसर है इसका सी और आंसर है इसका व्हाट डी, पॉइंट ए सी ना, कैसा सी, अब सी डिस्टेंस सी कितना है बी 2 है और डिस्टेंस सी 4 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन इसमें डिफरेंस कितना है, फर्स्ट में डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए इज व्हाट 2, मतलब
ए और बी में डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है, करेक्ट। और बी और सी में डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 2। दैट मीन्स बी से जो इक्विडिस्टेंस है सी एंड ए आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे सपोज अगर हम फाइंड करें डिस्टेंस बी सी का फाइंड करो, चलो डिस्टेंस बी सी कैसा मिलेगा हम लोग को, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फाइंड करो डिस्टेंस व्हाट, बी ए फाइंड करो, क्या मिला हम लोग को, 2 माइनस 0 2, तो ये भी 2 मिला, ये भी 2 मिला। दैट मीन्स point C and A are equidistant from point B. This was the answer. Second one, और एक point है C. Now A ले लो और ये C ले लो, correct? C. Now और एक point है point D. ये point B है, तो point D equidistant है और यहाँ से point B और point B equidistant है। कैसा? अगर suppose if you are finding what, ये ले लो, अगर find करो first part का, second part का करें डिस्टेंस, अगर हम फाइंड करेंगे बी डी, राइट, तो बी डी, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है 6, डी का है 2, 6 माइनस 2 करो, कितना आंसर आया 4। अगर फाइंड का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे पी बी, राइट, तो ये माइनस नेगेटिव साइन है और ये प्लस है, तो प्लस विल बी ग्रेटर नंबर माइनस माइनस 2, आंसर क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, कितना आंसर 4। ये भी 4 है, ये भी 4, बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल। दैट मींस जो डिस्टेंस B और P दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B से, फ्रॉम पॉइंट B से। सो B का डिस्टेंस B से 4 होगा और P का डिस्टेंस B से कितना रहेगा 4 होगा। सी इधर लो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये यहाँ से 4 है और यहाँ से 4 है। That means दोनों में से 4 4 है, that means point D and P are what, equidistant from what point B, correct? Same sir, see write the pair of equidistance from Q, अब Q से, correct? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब Q से, अब Q से कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो हमने लिया L, हमने लिया what U, see अब Q से L का डिस्टेंस 1 है और Q से U का डिस्टेंस 1 है। सी अगर सपोज इफ यू फाइंड व्हाट डिस्टेंस QL फाइंड करो, डिस्टेंस QL ले लो, तो जो नंबर स्मॉलर है वो भी ग्रेटर होगा, -3 -4 -3 माइनस माइनस का हो गया प्लस, आंसर क्या है 1, करेक्ट। अब डिस्टेंस फाइंड करो इसका व्हाट, QU फाइंड करो, तो अगेन माइनस Q क्या है -4 ग्रेटर नंबर है, इधर आएगा -5 -4 + 5 इज इक्वल टू 1, इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों का डिस्टेंस 1 1 आ गया। सो सी तो Q से L का डिस्टेंस 1 है, Q से 5 का डिस्टेंस क्या है 1 है, तो U एंड L, L एंड U आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम व्हाट पॉइंट Q, है। दूसरा और एक पॉइंट ले लो, सपोज नाउ हम लेंगे पॉइंट P एंड वी विल टेक व्हाट R ले लो। सी अब Q से 1 2 इनका डिस्टेंस क्या है 2 डिस्टेंस है और इसी कितना है डिस्टेंस है 2, इधर भी 2 डिस्टेंस है, इधर भी 2 डिस्टेंस है, तो यहाँ से 1 2 P आ गया, यहाँ से 1 2 R आ गया। सो P एंड R आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम व्हाट पॉइंट Q, दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा 2 2 आएगा, बोथ आर सेम। दैट मींस हियर P and R are equidistant from what Q, equidistant what, equal distance from what Q, इनका डिस्टेंस क्या इक्वल, P का डिस्टेंस Q से 2 है और R का डिस्टेंस Q से क्या है वो 2 है। That's why the P and R are what, equidistant from point Q, right? So 1.2 exercise we have completed. Now tomorrow we are going to upload what, the problem second. Please see the video and do the homework at home.